must have known me by the name Artofia if you follow me on Instagram, but many of you don't. So let me introduce myself. I am Hansika, and I am studying in class 12th, and I'm an artist. Yes, you can say that I'm an artist, but I am a learner, I'm not a professional one. Okay, so why I'm making this video? I am making this video to tell you about my art journey, and like art journey would be such a big name for a 12th class student because अभी तो art journey start भी नहीं हुई है. And what I am preparing for kind of a video, and if like I am in class 12, so how will I pursue arts in future, or like what I'm going to do in the future. So I am in class 12th right now, and I am preparing to enter into a fine art college. So the entrance exam which I am going to give for it is CET, Common Entrance Test. Its full name is MAH, Maharashtra AEC Applied Art and Craft Common Entrance Test. Okay, so I am applying for Nagpur's college. What was its name? Sorry, Chitrakala Mahavidyalaya. So जाना तो मुझे एक्चुअली जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में था, बट आई विल नॉट बी अलाउड टू गो टू मुंबई. ओके, आई लिव इन मध्य प्रदेश राइट नाउ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू गो टू मुंबई सो अर्ली. सो आई एम अप्लाइंग फॉर नागपुर बिकॉज इट्स क्लोजर, and I have so many relatives also over there, so my parents were like, yes, that's the safest option right now, and later on I can do whatever. So there are 4 main subjects in CET which which I have to give, or any student of you, like the 4 main subjects. So the first one is object drawing, second is memory drawing, third is design, 2D design, and the fourth one is general knowledge. Okay, and I can directly give CET exam, but it is recommended to give 2 more exams before CET. And in Maharashtra, these 2 exams are very common. Like in schools only allow the students to give this exam, and it's many, like almost everywhere compulsory in Maharashtra. Okay, so the 2 exams are elementary and intermediate art exams. So these exams also contain only these 4 subjects, but instead of general knowledge we have geometry and lettering. So these are very easy subjects. Okay, in elementary level तो बहुत easy होता है, बहुत easy, ठीक है मतलब. एंड हाँ, दिस एग्ज़ाम की जो एज होती है, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसकी एज ग्रुप इज़ आफ्टर 6th और फ्रॉम 6th क्लास. व्हेन यू रीच 6th क्लास यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. एंड अगर तुम स्टेट बोर्ड में होते हो, सो यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स. लाइक for example, you're getting 85% or something, so you will get 10-15 marks, or because you gave these elementary and intermediate exams. Okay, and इसमें भी grading होती है, A grade, B grade, C grade, D grade. Okay, so if you get the A grade, that's the best. Okay, A, B is okay, C and D में थोड़ा सा होता है कि हाँ you are at a lower level, but mostly elementary में सबको A grade मिल ही जाता है. It's easy. ओके, एंड ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट में इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग वी हैव स्टिल लाइफ. सो स्टिल लाइफ एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग दोनों डिफरेंट होते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट सेम, मतलब वो सेम बट डिफरेंट वाली चीज़ हो गई वो. लाइक इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग इट्स लाइक 1 or 2 ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू and you have to draw them, okay, perfectly, okay, at a distance. And in still life the objects are properly arranged. ठीक है, in object drawing you study the object. Okay, it's basically like this car. Okay, if I have to do object drawing of this car, so मैं इस कार को हर एंगल से स्टडी करूँगी. ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट व्यू, फ्रॉम द बैक व्यू, फ्रॉम द साइड व्यू, लेफ़्ट राइट दोनों, है ना. सो ये होती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट को कि वो हर तरह से कैसे दिखेगा, एंड नॉट ओनली फ्रंट एंड बैक एंड साइड वाला. ठीक है, डायगोनल में कैसा लगेगा, है ना, फ्रंट से डायगोनल में कैसा लगेगा, बैक से डायगोनल में कैसा लगेगा, वो भी बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड पर्सपेक्टिव में वो कैसा दिखेगा,
है ना। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया है एंड उसको सारे एंगल से बनाना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक तुम्हें जिस एंगल से ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम्हें उसे स्केच करना है। एंड इन CET ऑब्जेक्ट ड्राइंग में तुम्हें स्केचिंग करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। बट एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट में यू गेट स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ ऐसा प्रॉपरली टेबल पे अरेंज्ड होते हैं ऑब्जेक्ट, 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इंटरमीडिएट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम, 5-6 भी, कितने भी रख सकते हैं पता है, लेकिन उनका मर्ज़ी कि हमें डिफ़िकल्टी लेवल इस साल कितना रखना है ना, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स का होता है। तो हाँ, ये होता है स्टिल लाइफ। एंड स्टिल लाइफ में कैसा होता है, टेबल पे रखा जाएगा, ड्रेपरी होगी, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ कहीं स्टिल लाइफ के एग्जांपल्स की, बोथ एलिमेंट्री वाला और इंटरमीडिएट वाला, इधर एलिमेंट्री इधर इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हाँ, सो स्टिल लाइफ में इट्स लाइक प्रॉपर ड्रेपरी होती है, बैकग्राउंड में भी ड्रेपरी होती है, और जैसे बकेट रखी हुई है, सो बकेट के अंदर से भी ड्रेपरी जाती है ना। सो ये सब होता है ना। एंड वी हैव टू गिव दीज 2 एग्ज़ाम्स बिफोर CET, सो हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है काइंड ऑफ। एंड इंटरमीडिएट में अगर तुम्हें A ग्रेड मिलता है, सो CET का एग्ज़ाम जो 200 मार्क्स का समथिंग होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं फाइनल वाला टोटल नंबर लिख दूँगी ऑन स्क्रीन एनीवेयर, ठीक है। सो तो आई गेस 200 का ही होता है, ठीक है। सो जो अब मैं, अगर मेरे को इंटरमीडिएट में A ग्रेड मिलता है, सो आई विल गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स, तो 190 तो सॉरी आई विल गेट 10 मार्क्स, ओके, आई विल गेट 10 मार्क्स। एंड जो बचे हुए 190 होंगे वो मुझे स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो ये तो ओवरव्यू के इंट्रोडक्शन। मैं बताती हूँ मैं किस स्टेट पे हूँ अभी, मैंने अभी कौन से एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। सो मैंने लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन 11th, सो इन 2024 आई गेव माई एलिमेंट्री एग्ज़ाम एंड उसमें मुझे A ग्रेड मिल गया था। रिसेंटली अभी सितंबर में, इन 2025 सितंबर, मैंने दिया था इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया। That's true. I'm doomed. Now I don't know मेरा रिज़ल्ट क्या आता है। आई विल होप कि A ग्रेड मिल जाए। इतनी बुरी भी ड्राइंग नहीं हो मेरी, बट मे बी आई वॉजंट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस टाइम। काफ़ी लाइटली ले लिया था मैंने। एंड एक्चुअली इंटरमीडिएट ज़्यादा ज़रूरी होता है मोर देन एलिमेंट्री। कोई बात नहीं, अभी तो देखते हैं क्या होता है। इंटरमीडिएट मेरा इतना अच्छा नहीं गया था जितना एलिमेंट्री गया था। अब आई डोंट नो, मेरा स्टिल लाइफ बिगड़ गया था, ठीक है, मेरा स्टिल लाइफ बिगड़ गया था। मेरी ड्रेपरी बैकग्राउंड की पूरी ख़राब कर दी थी मैंने। मेरा मेमोरी ड्राइंग अच्छा गया था, मेरा 2D डिज़ाइन भी अच्छा गया था, लेकिन 2D डिज़ाइन में ना कुछ रूल्स होते हैं। 2D डिज़ाइन में जब तुम पोस्टर कलर का यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब CET में तो तुम्हें पोस्टर ही कलर यूज़ करने हैं। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में फिर भी तुम्हारे पास ऑप्शन दे देता है एग्ज़ाम वाला पेपर कि यू कैन यूज़ एनी कलर, यू कैन यूज़ वाटर कलर्स, यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स, एनी कलर, एनी मीडियम यू वांट। नॉट पेंसिल स्केचिंग, कलर्ड होनी चाहिए ड्राइंग, बाकी सारे मीडियम्स अलाउड होते हैं, ठीक है। बट CET में हमें पोस्टर कलर्स यूज़ करने होते हैं। एंड 2D डिज़ाइन इज़ लाइक, मुझे पता ही नहीं था 2D डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या होता है। इंटरमीडिएट जब तक मैं नहीं दे रही थी या मैंने CET की क्लासेस नहीं लगाई थी, तब तक आई डिडंट न्यू कि 2D एग्जैक्टली क्या है। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है मुझे तो। लोगों को मेमोरी ड्राइंग टफ लगती है, बट मुझे 2D ड्राइंग टफ लगती है। मुझे पोस्टर कलर्स वाटर कलर से ज़्यादा टफ लगते हैं। वो बात अलग है कि मैं वाटर कलर्स में भी अच्छी नहीं हूँ, प्रोफेशनल्स की तरह तो नहीं हूँ मतलब, पर द थिंग इज़ पोस्टर कलर से बेटर, ठीक है। सो पोस्टर कलर्स के कुछ रूल होते हैं कि 2D है वो, ठीक है, यू आर डूइंग अ 2D आर्ट पोस्टर कलर का यूज़ करके, इट शुडंट रिफ्लेक्ट। मतलब अगर मैं पेपर को सीधा पकड़ती हूँ, रुक जाओ, मेरा 2D आर्ट है, ठीक है, एक ये मेरा 4th पेंटिंग था। एंड अभी मैं बाकी वाले भी दिखा दूँगी जो भी मैंने बनाया है। फर्स्ट वाला देखोगे तो बोलोगे बाप रे ये क्या था। बिल्कुल
इधर उधर, ठीक है। एंड 2D आर्ट के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि प्रॉपरली प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स की, एंड कलर टोन, ठीक है, प्लस कलर स्कीम का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो अगर तुम इस आर्ट को देखो, है ना, एंड मैं अगर इसको लाइट के सामने रखती हूँ तो मेरी अगर पीछे यहाँ इसके पीछे से लाइट है तो मेरा इस पोर्शन में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई सा भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि इस पेंटिंग में हो रहा है। अभी नहीं समझेगा क्योंकि लाइट पीछे से नहीं सामने से आ रही है। सो इसी वजह से कि रिफ्लेक्शन ना पड़े पानी कम यूज़ करना पड़ता है। तो जो हरकत मैंने इंटरमीडिएट में करी, जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मैंने पानी यूज़ कर लिया। सो कलर कॉम्बिनेशन तो तुम भूल जाओ, ठीक है, वो तो बिगड़ा ही बिगड़ा। मतलब कलर कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक था, बट टाइम लिमिट बचाने के चक्कर में जो मैंने पानी का यूज़ किया था वो नहीं हो पाया, वो तो ख़राब हो ही गया, वो नहीं करना चाहिए था। टाइम लिमिट मेरे को ज़्यादा ही लग गई थी जितनी लगनी चाहिए उससे, एंड रिफ्लेक्शन भी पड़ गया था, है ना। सो 2D के रूल्स को तो मैंने पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था उस एग्ज़ाम में। फिर मेमोरी ड्राइंग मेरा अच्छा गया था एंड मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था कि मैंने उसको काफ़ी ठीक कर लिया बाद में। फिर जियोमेट्री भी मेरा अच्छा गया था एंड स्टिल लाइफ बिगड़ा था बस, ठीक है। तो इतना सब तुमको समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम में करना क्या होता है। तो इतना समझ गया तुमको कि एग्ज़ाम में क्या करना है। CET में भी सेम चीज़ें होती हैं, बस इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग और ये सब, सॉरी स्टिल लाइफ वी हैव ऑब्जेक्ट ड्राइंग, और ज्योमेट्री नहीं होती, ज्योमेट्री की जगह वी हैव GK। अब GK में क्या आता है, GK में इज़ नथिंग बट आर्ट रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अगर तुम जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया हुआ है अभी 12th में, सो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है फॉर फाइन आर्ट एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर तुम 12th NCERT हिस्ट्री को देखते हो तो काफ़ी सारा कुछ जो है आर्किटेक्चर के बारे में दिया हुआ है, पुराने म्यूरल्स के बारे में दिया हुआ है। जब मुगल पीरियड वगैरह जब था तो उस टाइम पे इस टाइप की पेंटिंग्स या म्यूरल्स बना करते थे, है ना। और आर्किटेक्चर भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन CET। MCQ फॉर्मेट में होता है, 40 क्वेश्चंस कुछ होते हैं, एंड हाँ ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि तुम्हें किसी भी चीज़ का लोगो दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें KFC का लोगो दे दिया गया है एंड तुमसे पूछा जाएगा कि इस लोगो को बनाने का आइडिया इसके डेवलपर को कहाँ से आया था। इंस्टाग्राम का लोगो दे दिया, इसका आइडिया कहाँ से आया था, है ना। एंड कुछ ऑप्शंस होंगे। फिर कलर स्कीम का कलर व्हील बनी होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की कलर स्कीम्स होती है, अगर उस पर वीडियो चाहिए होगा तो मैं बना दूँगी, मैंने रिसेंटली उसको पढ़ा है पूरा। तो हाँ, सो अलग अलग टाइप की कलर स्कीम्स होती है। अब कलर स्कीम के ऊपर मतलब तुम्हें दे दिया जाएगा, जैसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का कलर व्हील बना के दे दिया, है ना। वो का 3 कलर दे दिए तुमको, और अब पूछेंगे कि ये कौन सा कलर स्कीम है। ये नहीं पूछेंगे वार्म कोल्ड, वो तो तुम्हें एक बार में समझ आ ही जाएगा, पूछ सकते हैं वो भी, ऐसा नहीं है। बट मैंने जो क्वेश्चन एक देखा था लास्ट ईयर के पेपर में, उसमें यही था, आई गेस कॉम्प्लीमेंट्री या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन था। कलर व्हील दी हुई थी, नीचे ऑप्शंस में 4 दिए गए थे कि कौन सी कलर स्कीम है, सही ऑप्शन चूज़ करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स तो वैसे इसमें नहीं ही है, जो है वो ज्योमेट्री वाली है। और 2D आर्ट में जब तुम, जैसे कि ये स्क्वायर बना हुआ है, ये 6 इंचेस का स्क्वायर है, ठीक है। और सॉरी उल्टा पकड़ लिया यार, हाँ 6 इंचेस का स्क्वायर है एंड इसको मुझे एट द सेंटर ऑफ पेज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने जुगाड़ लगा लिया था पेज को मोड़ के सेंटर ढूंढने का, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते थे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पेज पे करनी पड़ती है। इसका मेजरमेंट लो, यहाँ का लो, है ना। उसकी भी 2 मेथड्स होती है, एक होता है डायरेक्टली कुछ डिस्टेंस नाप के तुम कर लो, काइंड ऑफ अ थिंग। दूसरा एक और इजी मेथड, मतलब फास्ट होता है बट कैलकुलेशन लगती है, बहुत माइनर कैलकुलेशन, ठीक है। वो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत ख़राब हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, ठीक है। और जब से मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया मैं मैथ्स को सॉल्व करना भूल चुकी हूँ,
वेरी बैड, इट शुडंट बी लाइक दिस, ठीक है। सो ऑल दिस वॉज द ओवरव्यू। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैं MP से, ठीक है, एंड ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र वालों के लिए, लाइक शायद से फाइन आर्ट कॉलेजेस सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, बट आई डोंट नो, क्योंकि इस एग्ज़ाम का नाम ही महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। सो अगर तुम महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, सो तुम्हारे लिए फिर भी ईजी है, ठीक है, अप्लाई करना सबके लिए ईजी है। कॉलेज मिलना तुम्हारे लिए मतलब एक स्टेप और वो पड़ जाता है। अगर तुम्हारा वर्क भी अच्छा है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं और तुम महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। बट बिकॉज आई एम फ्रॉम MP, तो मेरे को सिर्फ एक ही सीट मिली, ठीक है। अब मैं गारंटी भी नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि भाई और दूसरे स्टेट से भी कितने सारे लोग होंगे ना। एंड तुम सोचो, कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक सीट मिल रही है, एंड एक सीट पाने के लिए मुझे सबसे हाईएस्ट रैंकिंग करनी पड़ेगी, है ना। सो दैट्स वाई आई हैव टू प्रिपेयर मच हार्डर। सबको मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी सबको ज़्यादा ही करनी पड़ रही है, बट फॉर मी इट्स मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। अगर एंड हाँ, मेरा बैकअप प्लान ये है कि इन केस अगर मेरा एडमिशन नहीं हो पाता है एक गो में, ठीक है, 1 गो में, इफ़ आई डोंट गेट क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम, सो आई विल टेक एडमिशन इन एनी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में CET एग्ज़ाम नहीं लगती है, तो तुम बिना CET के क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों करना है तुमको? प्राइवेट से क्यों नहीं कर रहे? इतना महंगा भी नहीं होता फाइन आर्ट कोर्स। फाइन आर्ट कोर्स इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव, ठीक है। NID कोर्स इज़ एक्सपेंसिव, जो मुझे पहले करना था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया बिकॉज ऑफ दिस मनी फैक्टर। एंड दे सेड कि जब मैं आगे जाके थोड़ा सेल्फ अर्निंग कर लूँगी तो मैं कर सकती हूँ NID। आई वॉन्टेड टू बिकम एन एनिमेटर, बट कोई बात नहीं। फाइन आर्ट्स कॉलेज में भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इट्स फाइन आर्ट्स एंड अप्लाइड आर्ट्स। तो अप्लाइड आर्ट्स इज़ द डिजिटल मीडिया वाली चीज़ ही है वो, है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, इलस्ट्रेशन होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती है। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दैट। तो अगर मेरा फाइन आर्ट्स मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता तो आई विल गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, एंड प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद में मैं वहाँ पे 1 ईयर फर्स्ट ईयर अपना कर लूँगी, एंड देन मैं दोबारा एग्ज़ाम दे दूँगी एंड दोबारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एंड आर्टिस्ट का इज़ नॉट लाइक इंजीनियरिंग और डॉक्टर और एनी अदर पढ़ाई वाली फील्ड की। तुम्हें 4 साल है तो भाई 4 साल का कोर्स 4 साल में ही निपटाना है। 12th के बाद तुरंत करो, नहीं, ठीक है, आराम से ड्रॉप लेके करो। ड्रॉप नहीं भी लेना है, तुम पहली बार भी सिलेक्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज में 1 साल कर लो, फिर उसके बाद दोबारा पेपर दे देना, दोबारा भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, फिर से इसी कॉलेज में कंटिन्यू करना, एंड अगर हो जाते तो दोबारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लो, ठीक है। सो आर्टिस्ट की लाइफ इज़ नॉट लाइक कि भाई तुम्हें एक बार में ही 4 साल में ख़त्म कर लो एक ही जगह से। कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली यही होता है कि लोग एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज करते ही रहते हैं, बिकॉज आर्ट इज़ सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि तुम हर कॉलेज में जाओगे तुम्हें कोई नई चीज़ मिलेगी, हर टीचर से पढ़ोगे तुम्हें नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे खुद कॉलेज वाले सर ने कही थी जब मैं एडमिशन के लिए पूछने गई थी। तो सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो था और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, एंड अभी मैं कमरे में अकेली हूँ इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ वरना तो भाई मैं नहीं बोलती हूँ। मैं आई एम वेरी मच कैमरा शाय पर्सन, टाइम लगता है भाई वीडियो करने में, बट एक बार मैं बोलना चालू करती हूँ तो मैं बहुत लंबी बातें करने लग जाती हूँ। मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे ऐसे पॉज दी जाती हूँ। सो आई गेस इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई ट्राई टू कट द पार्ट जो काफ़ी अननेसेसरी है, जैसे कि मेरा छींकना खांसना जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ यार, एक आर्टिस्ट यूट्यूबर बनना है यार, बट 9th क्लास से सपना था मेरा आर्टिस्ट यूट्यूबर बनना है। सो फाइनली आई एम मूविंग ऑन टू दैट जर्नी। आई डोंट नो मैं रेगुलर पोस्ट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी आलस करती हूँ ये सारी चीज़ें करने में, बट हाँ
इफ़ यू लव द वीडियो एंड अगर तुम तक ये वीडियो पहुँचती है सो प्लीज़ इनको लोगों को शेयर करो एंड जो भी तुम्हारे न्यू आर्टिस्ट फ्रेंड्स होंगे जिनको आर्ट करियर में आगे बढ़ना होगा उनको ये वीडियो शेयर कर देना एंड यस दैट्स इट सो बाय बाय।